Assalamu alaikum students. Today we will start regression analysis and analysis of variance. In yesterday lecture we studied hypothesis testing about beta 1, beta 2 and sigma square, and we discussed that there are two approaches for testing of hypothesis. One is the confidence interval method and the second one is the test of significance. That is confidence interval approach and test of significance, and we studied these two methods in detail. We also completed some examples on both the approaches, that is on the confidence interval approach as well as the hypothesis testing, the usual traditional approach of the hypothesis testing. Now today we will start. We also completed the hypothesis testing about the sigma square, and we studied that to test the hypothesis about the sigma square, the test statistic will be the chi-square test. And in this table you can see that these are the different type of hypotheses. The first one is the one tail, and in this case the critical region will be on the right side, as it can be seen from the last column. In the second one, as you can see that sigma square is less than sigma naught square. So in this case, the critical region will be on the left side. And in the last one, as you can see that this is the two-tail hypothesis. And in this case, the critical region will lie on the both sides. We also discussed that the meaning of acceptance or rejecting a hypothesis. And we discussed the p-value approach, that what is the p-value approach of rejecting the null hypothesis. In today's lecture, we will study the regression analysis and analysis of variance approach. Total sum of square, as you know that the total sum of square can be divided into its components, and these components are, one is the explained sum of square and the other one is the residual sum of square. Remember that ESS is not for the error sum of square, but this is the explained sum of square, as we discussed it in the coefficient of determination topic in the previous chapter. So TSS is the total sum of square, which is denoted with summation yi square, and note that yi, small yi, is the deviation form, that is small yi equal to capital yi minus y bar, which is equal to summation yi hat square. Summation yi hat square is the explained sum of square, and the residual sum of square is denoted with the summation ui hat square. Now summation yi hat square is further equal to beta 2 hat square summation xi square, and we prove that in the topic of coefficient of determination, plus summation ui hat square. A study of these components of TSS is known as the analysis of variance. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्या मतलब है? जब आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर के इन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं या टोटल सम ऑफ स्क्वायर को आप अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. देखो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएशन है हमारे पास, तो वो वेरिएशन जो है ना, वो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो टोटल वेरिएशन है, उस टोटल वेरिएशन की जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसी को हम कहते हैं एनोवा. सो to analyze the total variation
into its components, it is called an analysis of variance. Now यहाँ पर जो TSS है, दिस स्टैंड फॉर द टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है टोटल सम ऑफ स्क्वायर के वो n-1 है, और फिर हम 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं n से कि यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब आप वाई बार को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी कैलकुलेशन करते हैं, सो वी लॉस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द टोटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप एस्टिमेट फाइंड करते हैं, दैट इज वाई बार। तो जब आप एक एस्टिमेट फाइंड करते हैं तो फिर हम 1 से इन टोटल ऑब्जर्वेशन से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आरएसएस के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n-2 है, और यहाँ पर लिखा हुआ कि क्यों है, तो इस वजह से है कि जब आप समेशन बाई आई हेड स्क्वायर फाइंड करते हैं, सो यू वी नीड द वैल्यू ऑफ बीटा 1 हेड एंड बीटा 2 हेड। यहाँ पर आपके पास दो पैरामीटर, सॉरी दो एस्टिमेटर को आप कैलकुलेट करते हैं, एक हमारे पास बीटा 1 हेड है और दूसरा हमारे पास बीटा 2 हेड है। तो यहाँ पर हम n से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास n-2 के बराबर होंगे, और जो हमारे पास जो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास बाय सब्ट्रैक्शन आएंगे, और वो 1 के बराबर होंगे। मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है। ये ESS के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ESS एंड प्लस RSS के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-2 है। Now to find out the degrees of freedom for the for the ESS, so we have n-1 and ये n-2 को इस साइड पे लेके आए, so that will be -n plus 2 equal to degree of freedom of ESS, and n-1 minus n, तो n और -n कैंसिल हो जाएगा, so -1 plus 2 बच जाएगा -1 and plus 2, which is equal to degrees of freedom of ESS, और -1 plus 2 से 1 आएगा, 1 equal to डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ESS। सो हमारे पास जो ESS के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 1 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिस n-1 इक्वल टू 1 प्लस n-2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है n-1 बराबर है 1 प्लस n-1 जो है ना वो ESS के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, जो ऊपर हमने एक छोटा सा प्रूफ भी इसके किया, और जो n-2 है वो हमारे पास RSS के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये जो है ना ये पूरा वेरिफिकेशन है इसकी कि n-1 बराबर है 1 प्लस n-2 के, क्योंकि 1 प्लस n-2 जो है वो n-1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो नीचे एक दो लाइनें लिखी है ये वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हवाले से इन्होंने बात कही है। अच्छा जी, अब इसका अगर आप टेबल देखें, यूजुअली जो इनोवा टेबल हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल मेथड में, तो ये वही इनोवा टेबल है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है ये ड्यू टू रिग्रेशन है, जिसको हम कहते हैं ESS, E फॉर द एक्सपीरियंस सम ऑफ स्क्वायर, और दूसरा जो है RSS है विच इज रेजिडुअल स्क्वायर, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट दैट दिस इज नॉट द regression sum of square, this is the residual sum of square, and this is not the error sum of square, but this is actually the experience sum of square or the regression sum of square.
इसका जो फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन दैट इज समेशन बाई आई हैट स्क्वायर, जो कि फर्दर बराबर है बीटा टू हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर के। इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, और मीन सम ऑफ स्क्वायर जो है लास्ट कॉलम जो है इस एनोवा टेबल का, वो आपको कैसे मिलेगा जब आप सम ऑफ स्क्वायर को अपने करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, तो जब आप बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगेन बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। और ड्यू टू रेजिजुअल जो है आर एस एस फॉर समेशन वाई आई हैट स्क्वायर, इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-2 है। इसका एमएसएस आपको कैसे मिलेगा जब आप समेशन बाई आई हेड स्क्वायर को डिवाइड करते हैं n-2 पे, और ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर हेट आ जाएगा विच इज द वेरिएंस। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, समेशन बाई आई स्क्वायर के बराबर है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो n-2 है। नीचे अगर टेबल के नीचे आप देखें एस एस जो है ना वो सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं एस एस मीन सम ऑफ स्क्वायर, और जो एम एस एस है दैट इज द मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है हमारे पास वो एफ है। एफ एफ बराबर है जो आपके पास जो लास्ट कॉलम में जो एम एस एस आएगा, एम एस एस फॉर द रिग्रेशन, मतलब एम ई एस एस, उसको हम एम एस एस ऑफ द आर एस एस पे डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि बीटा टू हेड समेशन एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे सिग्मा स्क्वायर हेड पे, तो ये हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक निकल आएगा। और बाकी जो प्रोसीजर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एफ के हवाले से वो यही है कि आप यहाँ पर जो जब आपके पास वैल्यू निकल आएगी एफ की, तो इस एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड के साथ। तो बाकी जो प्रोसीजर है वो वही है जो आपने एफ टेस्ट का पढ़ा था। अब ये वही एग्जाम्पल है, कंजम्पशन इनकम वाले एग्जाम्पल है, और उस कंजम्पशन और इनकम वाले एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा इनोवा टेबल बनाया है, और इसके लिए जो हमारे पास जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है जिसको हम ईएसएस कहते हैं या एक्सपीरियंस सम ऑफ स्क्वायर जो है वही फार्मूला है। उस फार्मूले पे जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये 8552.73 वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गए, और उसका जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है वो वही आएगा, क्योंकि जब आप 8552.73 को 1 पे डिवाइड करेंगे so you will get again 8552.73, और जो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर है आरएसएस उसका भी फार्मूला आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर समेशन यू आई हेड स्क्वायर, और इसका फर्दर अगर आपको इसको फर्दर आपने एक्सपेंड करना है तो ये वही कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वाला फार्मूले में आप जाके उसको देख लें तो इसका जो फार्मूला है आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। उस फार्मूले को जब आप यूज़ करेंगे, इसकी जगह आप सिग्मा हेड स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, तो सिग्मा हेड स्क्वायर का अगर आप फार्मूला देख ले तो वो भी सेम है। अब यहाँ पर जब आप आर एस एस फाइंड करते हैं तो वो 337.27, और उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 8 है। तो जब आप 337.27 को 8 पे डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 42.159, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, समेशन वाई या हेड स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टू हेड स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर। जब आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 8890 है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, n हमारे पास 10 है, 1 सब्ट्रैक्ट करें 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर अब आप एफ स्टैटिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर द रिग्रेशन एंड डिवाइड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर द रेसिडुअल, दैट इज 8552.73 एंड डिवाइड बाय 42.159, और आपके पास एफ की जो वैल्यू होगी वो 202.87 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक टेबल है, ये जो रिजल्ट है 5.11.1, तो ये देयर आर वेरियस वेज ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ये टॉपिक जो है सॉरी दिस इज द रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। यहाँ पर आप देखते हैं कि F18202.87 है, तो ये वही F है जो हमने अभी कैलकुलेट किया 202.87, तो ये भी वही 202.87 है। और ये चैप्टर 3 वाले इन्होंने जो रिजल्ट है चैप्टर 3 वाला ये वही रिजल्ट है, उसको इन्होंने उठाया है, और ये इसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन भी है कि हमारे पास जो F18 है
मतलब 1/8 का मतलब है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रेग्रेशन के है और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर के हैं। तो F18 पे हमारी जो वैल्यू है वो जो है वो 202.87 है। तो यहाँ पर भी ये 202.87 है। अब 202.87 जो है ना ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और जब ये बड़ी वैल्यू को हम अब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के लिए ये थोड़ा सा दोनों रिजल्ट सेम है, आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम सही। अच्छा, इन इक्वेशन 5.11.1 द फिगर इन द फर्स्ट सेट ऑफ पैरेंथेसिस आर द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है जिसके सामने स्टैंडर्ड एरर लिखे हुए हैं, तो ये जो 6.4138 है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट है, मतलब इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड एरर है। दूसरी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर की 0.0357, तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज एक्चुअली द standard error of the slope coefficient, that is beta 2 head, or if we studying it for the consumption income example, so this is the marginal propensity to consume, ये MPC है। The figures in the second set are estimated TV second set को अगर आप देखें ये वाला 3.8128 and 14.605 ये T statistic के वैल्यू हैं। इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट आप 24.4545 को डिवाइड करें 6.4138 पे, सो यू विल गेट 3.8128। इसी तरह आप 0.5091 को डिवाइड करें 0.0357 पे, सो यू विल गेट 14.2608। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर पी वैल्यू है, पी वैल्यू को हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो अप्रोचेज होते हैं, या तो आप कैलकुलेटेड जो आपकी जो वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड, उसको आप कंपेयर करें टेबुलेटेड के साथ और फिर आप बताएं कि आपका जो स्टार्ट है वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। और दूसरी जो अप्रोच है आप पी वैल्यू फाइंड करते हैं। पी क्या है, ये वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है जिस पे आपका जो हाइपोथेसिस है स्टार्ट वो रिजेक्ट होगा, और इसी को भी आप जो है ना वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद बाय फिटिंग द वैल्यूज इन द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पर जो पी वैल्यू है फर्स्ट वन दैट इज 0.002571। अब ये वैल्यू जो है ये लेस है अल्फा से, मतलब अल्फा अगर आपकी 0.05 है या अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 0.01 है, तो ये जो पी की वैल्यू है ये लेस देन अल्फा है, तो यहाँ पर आपके जो स्नाट है वो रिजेक्ट होगा, और स्नाट क्या है बीटा 1 इक्वल टू 0 जो यूजुअल हाइपोथेसिस है। सेकंड केस पे जो पी वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगेन ये वैल्यू जो है वो 0.05 से भी लेस है और 0.01 से भी लेस है, तो इस केस में भी आपका जो दूसरा हाइपोथेसिस है एच नॉट बीटा 2 इक्वल टू 0 वो भी आपका रिजेक्ट होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर इक्वेशन 5.11.1 पे द फिगर इन द फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंथेसिस आर द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। द फिगर्स इन द सेकंड सेट आर जो है वो कंप्यूटेड टी वैल्यूज हैं, और जो दैट इज the figures in the second set are the estimated values computed from 5.3.2 under the null hypothesis. The true population value of each regression coefficient individually is 0, that is ये वही मैं बात है जो मैंने भी आपको बताई। फिर जो वैल्यू है 3.8128 यहाँ पर जो टी की वैल्यू है ये कैसे आपके पास आएगी, मैंने आपको बता दिया कि आप 24.4545 को आप अगर अपने स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 3.8128, और यहाँ पर भी इन्होंने ये बात कही है। And the figure in the third set are the estimated p values। third set पे आप देखें तो वो estimated p values हैं। Thus for the 8 degree of freedom the probability of obtaining the a t value of 3.8128 are greater than 0.0026, and the probability of obtaining a t value of 14.2605 are larger is about 0.000003। 289 को इन्होंने 3 कहा है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट है 5.11.1 इस पे थोड़ी सी डिस्कशन है। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो ख़त्म हो गया दिमुदार गुजराती का। सही है, अब इस चैप्टर से मैं आपको कुछ देता हूँ काम, ताकि आप वो जो है ना वो काम पूरा कंप्लीट करें। सो थोड़ा सा आप जो गुजराती का जो बुक है गुजराती बुक वो थोड़ा सा आप इसको देख लें,
लेट मी सी दैट कि हमारे पास जो गुजराती का जो बुक था उस बुक से मैं आपको कुछ काम देता हूँ चैप्टर 5 का। एंड ये आपका दूसरा असाइनमेंट है कि असाइनमेंट आपने सबमिट किया है, उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो आप लोगों ने कुछ लोगों ने जो सेंड किया है तो वो मुझे नज़र नहीं आता। तो उस पर बात कर लेंगे कि किन किन लोगों ने मुझे असाइनमेंट सेंड किए हैं, किन किन लोगों का मुझे समझ आ रहा है और किन लोगों का समझ नहीं आ रहा, और डेली बेसिस पे हम अटेंडेंस भी चेक करेंगे। सो लेट्स गो टू द chapter 5, that is this is the chapter we completed in the slides, two variable regression, interval estimation and hypothesis testing। इसके थोड़ा सा हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। सो ये इसका एक्सरसाइज आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स आर अनसर्टेन, बी प्रिसाइज। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और आप ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। बी प्रिसाइज का मतलब है कि आप एक्यूरेट जवाब दे दें, कि आप एक्यूरेट हो। द टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, the t-test of significance discussed in this chapter require that the sampling distribution of estimated beta 1 hat and beta 2 hat follow the normal distribution। की ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर गलत है तो फिर भी आप बताएं, मुझे तो सही लग रहा है। अदरवाइज आप किताब देख लें तो किताब में इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये आपने the t-test of significance discussed in this chapter requires that the sampling distribution of estimated beta 1 hat and beta 2 hat follow the normal distribution। सही है कि जब आप टी टेस्ट लगाते हैं तो टी टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 1 हेड का और बीटा 2 हेड का वो नॉर्मल को फॉलो करेगा। तो आपने बताना है कि ये बात सही है कि नहीं, गलत है। Even though the disturbance term in the classical linear regression model is not normally distributed, the errors estimated are still unbiased। यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास जो डिस्टर्बेंस टर्म है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हमारे पास जो ओएलएस एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह सी पार्ट पे, इफ देयर इज नो इंटरसेप्ट इन द रिग्रेशन मॉडल द एस्टिमेटेड म्यू इक्वल टू म्यू हैट विल नॉट सम टू जीरो। तो यहाँ पर अगर एक रिग्रेशन में आपके पास इंटरसेप्ट नहीं है तो फिर जो एस्टिमेटेड जो वैल्यू है म्यू आई की वो जीरो के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये भी आपने बताना है। फिर द पी वैल्यू एंड द साइज ऑफ इट स्टैटिस्टिक मीन द सेम थिंग, ये आपने चेक बताना है। इन रिग्रेशन मॉडल तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड वन, सेट अप द एनोवा टेबल इन द मैनर ऑफ टेबल 5.4 फॉर द रिग्रेशन मॉडल गिवन इन 3.7.2 and test the hypothesis that there is no relationship between food and expenditure, food expenditure and total expenditure in India। ये टेबल 5.4 में अभी मेरे ख्याल से वो टेबल नीचे अवेलेबल होगा। टेबल 5.4 अवेलेबल नहीं है तो पीछे जाके आप उसको देख लें, बुक में देख लें। उस टेबल के लिए आपने जो इनोवा टेबल है वो आपने बनाना है, और टेबल 5.4 की तरह किताब में जो टेबल 5.4 है उस टेबल को आपने देख के जो जो डेटा है, सॉरी, जो रिग्रेशन मॉडल है 3.7.2, उस 3.7.2 के लिए आपने टेबल बनाना है, इनोवा टेबल, और फिर आपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस करनी है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फूड एक्सपेंडिचर एंड टोटल सॉरी फूड एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा अगर आप टेबल 5.4 निकालें तो ये, सॉरी, टेबल 5.1 and that is it is table 5.4 and ये 5.3 and this is 5.4। so ये टेबल 5.4
और इस टेबल 5.4 ये भी हमने डिस्कस भी किया वहाँ पर। तो बाकी जो जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन था, उस इक्वेशन के लिए फिर आपने इसी तरह जो टेबल है 5.4 ये टेबल आपने बनाना है। 3 पॉइंट आई डोंट नो कि वो क्या था नंबर, तो ये हाँ 3.7.2 3.7.2 where 3 point where is 3.7.2 ये 3.7.2 वही जो कंजम्पशन और इनकम वही टॉपिक है, क्योंकि 3.7.2 जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा। तो उस इक्वेशन को देख के आपने जो टेबल मैंने आपको देखा है इसी तरह एक आपने इनोवा टेबल जो है वो बनाना है। अच्छा, फिर 5.3 फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 2.6 वही 2.6 आप चैप्टर 2 पे जाएंगे। लर्निंग एंड एजुकेशन वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिग्रेशन, जो ये आपके पास रिग्रेशन मिल जाएगा। ये जो मॉडल है ये सारी चीज़ें ये, तो आपने जो मिसिंग वैल्यू है ये वाली ये आपने कैलकुलेट करनी हो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5.3 का। ए बी सी डी ई ये सारे पार्ट जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर द मिड टर्म एंड द फाइनल टर्म। के यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर ये आपने फाइंड करना है, मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ इंटरसेप्ट तो गिवन है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टी वैल्यू मिसिंग है, तो टी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.7437 को स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.8355 पे डिवाइड करें। यहाँ पर तो टी वैल्यू गिवन है, आपके पास स्टैंडर्ड एरर नहीं है, तो यहाँ पर जब आप डिवीजन करते हैं तो आप खुद ही सोचें इन दो वैल्यूज के साथ आप क्या करेंगे कि आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिल जाएगी। सही है। फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हाउ डू यू इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट ऑफ 0.6414, ये जो कोएफिशिएंट है 0.